নমস্কার, আসানসোল টাইমস থেকে আমি ডালিয়া শুরু করছি আজকের বিশেষ খবর। আজ আসানসোলের বিএনআর মোড় এলাকায় অবস্থিত টিএমসি ভবনে একটি সভার আয়োজন করা হয়েছিল, যেখানে আসানসোলের উত্তরের বিধায়ক এবং রাজ্যের আইন ও পিডব্লিউডি মন্ত্রী মলয় ঘটক, অভিজিৎ ঘটক, গুরুদাস চ্যাটার্জি সহ সমস্ত স্থানীয় টিএমসি নেতা উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষে মলয় ঘটক বলেন, আসানসোলে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে দুটি বড় নির্বাচন হতে চলেছে। এর জন্য তিনি কর্পোরেশন নির্বাচন এবং লোকসভা নির্বাচনের সমস্ত তৃণমূল কর্মীদের একত্রিত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। যারা আসানসোলে থাকি, আমাদেরকে কিন্তু দুটো গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন আমাদের ঘাড়ের উপর চলে এসেছে। একটা হচ্ছে কর্পোরেশনের ভোট, আর দ্বিতীয় আপনি জানেন আমাদের এখান থেকে যিনি সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিলেন বাবুল সুপ্রিয়, তিনি পদত্যাগ করে দিয়েছেন। তো পদত্যাগ করলে আবার সেখানে উপনির্বাচন বা বাই ইলেকশন হবে। সুতরাং সেই উপনির্বাচনেও আমাদের দলের যিনি প্রার্থী হবেন তাকে জেতানোর জন্য আমাদেরকে ময়দানে নামতে হবে। এই নির্বাচনে লড়াইয়ে আমরা মিছিল করি, মিটিং করি, সভা করি, আমাদের নেতা নেত্রী যারা আছেন হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষের জনসভা করি। কিন্তু নির্বাচনের প্রথম কাজ হচ্ছে ভোটার লিস্ট। নির্বাচনে কে ভোট দেবেন সেই নামটা কিন্তু ভোটার লিস্টে থাকে। এখানেই দেখবেন অনেকে আমাদের যারা এসছেন, আমি বলতে পারি এর মধ্যেও 20% আছে যাদের ভোটার লিস্টে নাম নেই। তারা পার্টির মিটিংয়ে আসেন, পার্টির মিছিলে আসেন, পার্টির হয়ে লড়াই করেন, কিন্তু ভোটের দিনে ভোটটা দিতে পারেন না। গিয়ে পরে দেখেন যে ভোটার লিস্টে তার নামটা নেই। তো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণভাবে আমাদেরকে ভোটার লিস্টের কাজটা করতে হবে। এবং আপনারা হয়তো জানেন না যে 1 নভেম্বর থেকে ভোটার লিস্টের কাজ চালু হয়ে গেছে। অলরেডি আমরা এই 7টা দিন 8টা দিন আমরা কিন্তু নেগলিজেন্স করে ভোটার লিস্টের দিকে নজর দিন। ঠিক আছে, দুর্গা পুজো ছিল, কালী পুজো ছিল, আগামী 10 তারিখে 10-11 তারিখে ছট পরব আছে, তারপরে 11-12-13 বোধহয় শনিবার রবিবার আছে। কিন্তু লাস্ট যে 15টা দিন, সেই 15টা দিনে কিন্তু আমাদেরকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। গত বেশ কয়েক বছর ধরে রানীগঞ্জ থানায় নাগরিক কমিটির উদ্যোগে কালী পুজোর আয়োজন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় এবছরও করোনার সব নিয়ম মেনে ধুমধাম করে পুজোর আয়োজন করা হয়েছে। এই উপলক্ষে খিচুড়ি ভোগের আয়োজন করা হয়, যেখানে বিপুল সংখ্যক ভক্তকে ভোগ খাওয়ানো হয়। রানীগঞ্জের বিধায়ক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় এই অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি নিজেই মানুষকে খিচুড়ি খাওয়ান। এদিন রানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অজয় কুমার মণ্ডল সহ সকল পুলিশ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। স্তবক দিয়ে বরণ করে নিচ্ছেন রানীগঞ্জ থানার আইসি মাননীয় শ্রী অজয় কুমার মণ্ডল মহাশয়। আজ রানীগঞ্জের মারোয়ারি রিলিফ সোসাইটির হাসপাতালে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল, যেখানে 215 জন দরিদ্র মহিলার মধ্যে 1 মাসের রেশন এবং কম্বল বিতরণ করা হয়েছিল। কালী পূজা ও আসন্ন ছট উৎসবকে সামনে রেখে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, যেখানে এ অঞ্চলের নারীরা উপস্থিত ছিলেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন আরপি খয়তান, রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি প্রদীপ বাজোরিয়া, ওম বাজোরিয়া, স্বামী সুব্রতানন্দজি মহারাজ, সুরেন্দ্র সিং, রমেশ সরফ এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं वरदं
मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समुंदर तलाश कर। जी हाँ, मैं हूँ जाहिद अनवर और आप देख रहे हैं आसनसोल टाइम्स। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आरपी खेतान जी, जो मड़वाड़ी सोसाइटी की तरफ से कई विधवाओं को कंबल खाना वितरण किया। आइए जानते हैं उनकी ही जुबानी कि आज की जो कार्यक्रम है वो क्या किए हैं। सबसे पहले आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है सर। आज क्या कार्यक्रम? धन्यवाद, शुक्रिया। ऐसा है, आज से करीब 10 वर्षों पहले हमारे किसी शुभचिंतक ने हमें ये परामर्श दिया कि हमारी जो विधवाएं हैं बिल्कुल उपेक्षित हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है, इसके बारे में कुछ सोचो। मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल चलता ही है, इसमें समाज के जो एकदम दबे हुए कुचले मजलूम भाई, हमारे दुष्टों अनिष्टों मासूम कमज़ोर वर्ग जो हमारा असहाय है, निर्बल है, उनकी सेवा होती है इस अस्पताल में आज 55 वर्षों से। तो बहुत कम दाम के अंदर में, जिस कैबिन का चार्ज दुर्गापुर के बड़े अस्पतालों में 10,000 12,000 रुपया है, हम वो यहाँ 2,000 रुपये में देते हैं उनको, 2 से 2,500 रुपया सब मिलाकर। तो सोचिए आपकी कितनी बड़ी सेवा हो रही। बड़े डॉक्टर रानीगंज के 500 रुपया 400 रुपया लेते हैं, वही डॉक्टर यहाँ बैठ करके 50 रुपया में हमारी OPD का चार्ज है। तो ये पुरखों का और ठाकुर का आशीर्वाद है। स्वामी रामकृष्ण के आदर्शों पर चलते हैं हम, तो उनके आशीर्वाद की वजह से ये काम हो पाता है। जब उन्होंने ये बात कही तो मेरे दिमाग में कौंधी ये बात, बहुत सही बात है, पर उन्हें कहाँ से लाए हम, विधवाओं को कहाँ ढूंढें। तो मैंने कई संस्थाओं की मदद ली, कई लोगों की मदद ली। उसमें रामकृष्ण मिशन भी है, हमारे काउंसिलर थे लाजाबान साइड के आरी जलीस साहब, वो थे। सियासुल की जो विवेकानंद जो शारदा चेतना मंच है, वो उन लोगों ने मेरी मदद की। रुनाई की कुछ लोगों ने मेरी मदद की, गिरजापाड़ा कुछ लोगों ने मदद की, और 200 का आंकड़ा 1 वर्षों में विधवाओं का मेरे पास तैयार हो गया। हमारे प्रबंधन ने ये निश्चित किया कि उनको एक येलो कार्ड, पीला कार्ड दिया जाए पहचान के रूप में। अब वो आज आती हैं 10 वर्षों से यहाँ पर, उनका टोटल मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री है। वो आने जाने का भाड़ा तक भी उनको हम देते हैं। यहाँ पर कोई टेस्टिंग हो, एक्सरे है, पैथोलॉजिकल टेस्ट है, अल्ट्रासोनोग्राफी है, सब फ्री होती है। अस्पताल में 5 दिन 7 दिन भर्ती है, सब फ्री है। उनको जितनी दवाएं हैं सब फ्री है। तो ये सेवा चल रही है। इसके अलावा उनके घर में जो सामान चाहिए घरेलू यूज़ के लिए, आज जैसे आप लोगों ने देखा कंबल दिया हमने, इसके पहले आप लोगों ने देखा साड़ी दी थी, अगले महीने फिर वो प्लास्टिक की बाल्टी, मग वगैरह ये सोचा जा रहा है। ये कार्यक्रम मगर रेगुलर चलता रहता है, हर महीने चलता, आप तो देखते हैं। और घर के लिए मशहरी है, बेडशीट है, छाता है, चश्मा है, चप्पल है, जो ज़रूरत है वो हम हर महीने इनको दे देते हैं। इस तरह से कार्यक्रम चल रहा है। समाज के जो दाता हैं, हमारे उदार मन के जो उदार चित्त के जो लोग हैं, वो हमारी मदद करते हैं, बहुत मदद करते हैं। भी हैं जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं। तो इस विषय में आप पूरे शिल्पांचल को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, हम यही मैसेज देना चाहेंगे। महात्मा गांधी ने कहा था कि आपके पास जो धन है वो आपका नहीं है, आप उसके ट्रस्टी हैं, उसका सदुपयोग कीजिए, उसका सही काम में उसको खर्च कीजिए। तो मैं यही कहूँगा, हमारे जो सक्षम लोग हैं, जिनको उस अल्लाह ताला ने, उस भगवान ने, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने आपको सक्षम बनाया है, सबको नहीं बनाया। हमारी विधवा माताएं हैं, ये तो बहुत नीचे हैं। जिनको पैसा धन दिया है, आप उसका सदुपयोग कीजिए। कुछ समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए भी सोचिए, और आप अपने हिसाब से काम कीजिए ना। मेरे से कोई प्रेरणा लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे से बहुत वरिष्ठ लोग समाज में मौजूद हैं, हर तरह से सक्षम है, सोच से सक्षम है, अर्थ से सक्षम है। उनसे मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, प्रार्थना है कि आप भी इनके बारे में सोचिए। जो हमारे दुर्गापुर और कलकत्ते के बड़े अस्पतालों में जाके इलाज नहीं करवा पाते हैं, उनके बारे में सोचिए, तो समाज का कल्याण होगा। एक महल किसी का बनता है, मकान बनता है, 5 झोपड़ी नष्ट होती तब वो मकान बनता है। तो उनका सोचिए, जिसको आपने उजाड़ा है, आप ऊपर से झांक के देखिए आपके अगल बगल कितनी झोपड़ियाँ, उनके बारे में सोचिए। तो ये तो समाज के चिंता करने की बात है। बहुत अच्छे अच्छे चिंतक हैं समाज में, वो सोचेंगे। मैं तो उनका एक शिष्य हूँ। मैं तो ये कहता हूँ, हमारे जो समाज के
बुजुर्ग हैं, मैं उनका एक छोटा सा चेला हूँ। मुझे वो बुद्धि देते हैं, मैं ये काम कर पाता हूँ आप लोगों के सहयोग से। आप लोगों का सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैसेज अगर सब जगह जाता है तो समाज के अच्छे लोग स्वतः सामने आएंगे। जैसे अभिजीत घटक साहब आए थे तो उन्होंने कहा INTTC के आज बहुत पावरफुल आदमी है, जिला अध्यक्ष है। उन्होंने कहा था कि खेतान साहब ये प्रोजेक्ट आसनसोल में क्यों नहीं कर रहे। मैंने कहा सर आप शुरुआत कीजिए, मैं वहाँ आऊँगा, मैं आपकी मदद करूँगा, मैं आपके पीछे खड़ा रहूँगा। मैं तो मदद क्या करूँगा उनकी, मैं उनके आपके पीछे खड़ा रहूँगा। आप शुरुआत तो आज भी मैंने उनको सुबह तक अदा किया, सर आसनसोल का प्रोजेक्ट का क्या हुआ। तो आने वाले थे पर आज नहीं आ पाए, व्यस्त आदमी है। तो उनके सहयोग से आसनसोल में प्रोजेक्ट शुरू हो जाए, बड़ाकर हो जाए, नियामतपुर हो जाए तो बड़ी खुशी होगी मुझे। मेरा समाज को यही संदेश है, अपने अगल बगल अपने नीचे तबके के लोगों को हम लोग देखें। ये रानीगंज में बहुत बड़ा समाज है, सियारसोल है, ये कुंवर बाजार है, राजा बांध है, ये हमारा रुनाई है, इसके पीछे नीचे चले जाए स्कूल पाड़ा के नीचे बहुत सी बस्तियां हैं। हम उनमें जाए, उनका दर्द बांटे, उनको कम से कम इलाज के माध्यम से जैसे राशन वगैरह दे रहे हैं इसके माध्यम से कुछ सेवा कीजिए उनकी। এতক্ষণ আপনারা দেখছিলেন আসানসোল টাইমস। আসানসোল টাইমসের পর্দায় চোখ রাখুন শিল্পাঞ্চলের নিত্য নতুন বিভিন্ন খবর দেখার জন্য। আসানসোল টাইমসের ইউটিউব চ্যানেলকে লাইক করুন, সাবস্ক্রাইব করুন এবং ফলো করুন। ধন্যবাদ।